वायलिन इज इनके पूरी बॉडी की एक्सटेंशन है. वो जब बजाते हैं, इट्स पार्ट ऑफ हिज बॉडी, ऐसा लगता है. He knows every bit of the tune. I met her in the recording studio, and the first time itself when I saw her and gave her the music, everything, she, as I expected, it was totally a different thing. कि हम सुर में गाएं, एकदम लय में गाएं, वो कोशिश जो है, और अच्छे आर्टिस्ट के ऊपर जब थोड़ा सा ऑटो ट्यून यूज होता है, वो एनहांस हो सकता है. His dream was to make it a solo instrument and change, so he worked a lot and brought in very lot of new techniques. फिर थोड़ी देर तो उन्होंने बात नहीं किया मुझे. मैं डरी हुई थी. पंचम दा ऐसे बैठे, वो रिहर्सल चल रहा है, वो करिश्मा का गाना था, और वो मुझे देख रही है. उसके बाद थोड़ी एक घंटे के बाद उन्होंने मेरे से बात की. काहे को ब्याही विदेश लखी बाबुल मुरे, काहे को ब्याही विदेश. आवाज जो दिल को छू जाए, संगीत जो आपकी अंतरात्मा को झकझोर जाए, एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन है और एक ऐसे ही पावर कपल हैं जो संगीत की दुनिया के दिग्गज हैं. मेरे साथ हैं पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति, और मेरे साथ हैं पद्म भूषण ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेटेड एल सुब्रमण्यम. सर, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए. आप लोग लीजेंड हैं, और मेरी उम्र से भी कहीं ज़्यादा आपका तजुर्बा है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है, जो हमारे लिए हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है. और शुरुआत कविता मैम मैं आपसे करूँगी, और सर आपसे भी. आपके संगीत की बातें होती हैं, आपकी लव स्टोरी बहुत म्यूज़िकल है. या तो कविता मैम के हमने बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं. उन्होंने बताया कि वो एक स्टूडियो में गई, देन यू मेट, एंड आई थिंक वो क्या था प्रोग्राम, वो कैंसिल हो गया. बट फर्स्ट जब आपने कविता मैम को देखा था, तो व्हाट यू फील अबाउट मैम व्हेन यू फर्स्ट सॉ? When I first saw her, यस. I was involved in a project. I had to compose for an album and for a movie. The album was for the Warner Brothers called Global Fusion Album. I asked one of my friends to send me different voices, lady's voice, so that I can select one from. So a whole bunch of Hollywood singers' tapes were sent to me, cassettes and things. I heard everything, and one particular voice I felt had an extra dimension, what I was looking for. Either many other voices has either a very romantic voice or very, item numbers and things like that. But one voice which I felt was crossing different things. Either it is, romantic or, but very tough virtuosic songs and things like that. Without knowing, I selected this and I found out this was Kavita Krishnamurthy. Then finally, I went to do some recording in Bombay. At that time, one of my friends said she's singing today, so you can go and meet her there and listen to her personally instead of the tape. So I went there. By the time I went there, it was 1 hour. I took a break from the recording. Went there. By the time they had an intermission, so I said I can't wait anymore. So I waited a few minutes and then I came back. Subsequently, I met her in the recording studio, and it was the first time itself when I saw her and gave her the music, everything. She, as I expected, it was totally a different thing when she sang. A lot of emotion, a lot of things. And then subsequently, I wrote a lot of composition exclusively for voice and everything. Our journey started as a musical meeting and developed into a very strong personal bondage and companionship. And it's like an unbelievable story, but it's fantastic. Fantastic. So मैम आपको सिंप्लिसिटी सर की टच कर गई, या फिर वो वायलिन की धुन, उसको तो देख के कोई रोमांस आ जाता है? एक्चुअली जब फर्स्ट मैं इनके लिए जब मैं एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए गा रही थी, जब हुआ नहीं, उसके बाद ये ग्लोबल फ्यूजन के लिए गा रही थी. एक तो इनका म्यूजिक मुझे बहुत इम्प्रेस किया एज ए कंपोजर. एंड जब ये वायलिन बजाते हैं, you know कि there can be no other second player like him. Yes. The violine is इनके पूरी बॉडी की एक्सटेंशन है. वो जब बजाते हैं, it's part of his body, ऐसा लगता है. He knows every bit of the tune. तो डेफिनेटली म्यूजिकली मैं बहुत इम्प्रेस हुई. पर दूसरी बात जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा was that he was a very educated mind. मतलब मेडिसिन तो किया इन्होंने, पर इनका बड़ा रैशनल अप्रोच है, और बहुत काम, कोई भी सिचुएशन में बहुत काम रहते हैं.
मैं थोड़ा है हड़बड़ कर जाती हूँ, ये कभी हड़बड़ नहीं होते, इज वेरी वेरी काम। तो आई फेल्ट फॉर अस इट वाज अ परफेक्ट ब्लेंडिंग, क्योंकि मैं हर बात पे थोड़ी वरी बर्ड हूँ, बहुत जल्दी घबराती हूँ। जैसे मैं एयरपोर्ट 1 घंटा पहले पहुंचूंगी या 1.5 घंटा पहले पहुंचूंगी, और ये आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, बोल रहे आई वी वोंट मिस द फ्लाइट, डोंट वरी कविता, ऐसा टेम्परामेंट है इनका। So I think those ways we were opposite, and it suited. And musically, I think our companionship has been strong bond. Music has been a strong bond. ये तो मैम आपके पर्सनल लाइफ की बात है। अब आपके करियर पे अगर आएँ तो आपको लंदन में पढ़ाई का मौका मिला, आपको हेमा मालिनी जी के साथ भरतनाट्यम सीखने की भी ट्रेनिंग का मौका मिला, पर वो सब छोड़ के आपने म्यूज़िक को चुना था और आपने तय किया था कि नहीं, मुझे म्यूज़िक करना है। बहुत छोटी उम्र से आप गा रही हैं। 1980 में आपने रेखा जी के लिए गाया था, जो बहुत कम रिकॉग्नाइज होता है कि वो आपका फर्स्ट गाना है। आपको पता है ये बात? मेरी काहे को ब्याहे विदेश, कमाल है। हाँ, यस, वो एक्चुअली डबिंग था, लता जी के लिए डब करने वाली थी, पर वो गाना मेरा प्रोड्यूसर्स ने रख दिया। और वो सबसे पहले मुझे घर पे, कहते हैं ना सिल्वर जुबली का एक मोमेंटो क्या होता है, मैंने पहली बार मांग भरो सजना का मेरे घर पे, वो मोमेंटो आज तक मेरे पास है। आप उसके पास एक लाइन सुनाएंगे, क्योंकि अभी भी लोगों को वो अब नहीं है ध्यान में। अच्छा, आपकी दिल्ली में मौसम बहुत अच्छा नहीं है गाने के लिए, फिर भी काहे को ब्याही विदेश, लखी बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। ब्यूटीफुल। आपके लिए मौसम कोई रुकावट नहीं है। आवाज़, सच में कहते हैं कि कभी कभी ना हमें कहा जाता है कि गले में सरस्वती होती है, पर हमने यहाँ देखी है, हम यही कहेंगे। और मैम, आपके करियर की स्टार्ट होती है, फिर आपको जो फर्स्ट ब्रेक है, कहना चाहिए आपको रिकॉग्नाइज है, वो है आपका मिस्टर इंडिया, हवा हवाई। सबको पता है, लेकिन मुझे ये है कि जब ये गाना सीधा नहीं है, अस्सी तुस्सी लिस्सी बिस्सी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। इस गाने के इन वर्ड्स का रियाज कैसे होता है कि ये वाला यहीं पे आएगा? एक्चुअली वो एक दिन पहले रिहर्सल हुआ था लक्ष्मी जी के यहाँ, तो जावेद साहब भी थे। मैं तो बहुत घबराई हुई, क्योंकि वो अंदर जाओ तो लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, जावेद साहब जी सब थे, और मुझे बताया गया कि बहुत बड़ी फिल्म का गाना है और पर शायद आपकी आवाज़ में नहीं रहेगी ये। फिर भी मैं लिखते बोले, पहले लिखो पक चिकी लकी चिकी चिकी लकी चिकी चूम तरफ चिकी, मैं भी ऐसे, जावेद साहब ने ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे, होनोलुलु लुलु लुलु, फिर ये सब तो हुआ, फिर पूरा फॉर्मेशन पक चिकी का हो गया था। पर बाकी वर्ड्स क्या हुआ, स्टूडियो में जाने के बाद जब हम बैठे थे, म्यूजिक प्यारे भाई अरेंज कर रहे थे, तो म्यूजिशियन साहब बोले, लक्ष्मी जी बोले, जो वर्ड्स आपके म्यूजिशियंस आपको देंगे आप सब नोट करते जाइए। तो उसमें किसने कहा लस्सी पीसी, तो लस्सी पीसी, लस्सी पीसी तो अस्सी तुस्सी भी हो सकता है, चलो अस्सी तुस्सी। फिर जावेद साहब 2 बजे आए, बोले लक्ष्मी जी इस पूरा पीस का एंडिंग एक ही वर्ड हो सकता है। लक्ष्मी जी बोले वो क्या है? बोले मोम्बासा। वो अच्छा अलग से एड ऑन ऐसे ही वर्ड था, वो सब एड ऑन हुआ। फिर लक्ष्मी जी वहाँ बैठ के स्टूडियो में ये कंपोज करके मुझे सिखाए। तो ऐसे ही मैं तो गाना तो भूल ही गई। मैं तो सिर्फ ये ओपनिंग जो लाइन्स है उसको लेके मैं पक चिकी लकी चिकी पक चिकी लकी चिकी पक चिकी कर रही थी, क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, पूरे म्यूजिशियंस के साथ गाते थे ना हम लोग, कहीं गलत गा दूं तो पूरा टेक कट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे वजह से कोई टेक कट हो, तो मेरी पूरी अटेंशन थी कि मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हो। तो वो पक चिकी को मैं मुंह पे बिठा रही थी कि कहीं मिस्टेक्स ना हो, तो उस पे ही टाइम निकल गया। फिर मैंने इस गाने में आपसे गलती भी हुई थी। हाँ, गलती भी हुई थी, जो अपने आप में नेचुरल थी, और उसी से उसकी पहचान भी थी कि नहीं ये अच्छी लग रही है, क्योंकि वो गाना ही ऐसा था, शरारत वाला गाना ऐसा था कि श्रीदेवी जी ने ऐसा उसको शूटिंग पे ऐसे डांस किया कि जितने भी गलत, उसमें अगर गलत वर्ड भी हो वो भी सही लग रहा था कि यही होना चाहिए शायद। वो मस्ती भरा गाना है। हाँ, मस्ती भरा। लेकिन उसमें टास्क ये है कि मस्ती भरी श्रीदेवी जी तो हमें चुलबुली दिखती हैं स्क्रीन पे, आप बहुत शर्मीली, तो ये गाना मुश्किल था आपके लिए सभी तक? बहुत मुश्किल था, क्योंकि सबसे पहले जो कहते हैं ना नॉटी सॉन्ग, मैं बहुत डरी हुई सिंपल मिडिल क्लास लड़की स्टूडियो पे आई, और इस तरह का जब गाना, और फिर 100 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं और सब मेरी तरफ देख रहे हैं जब मैं गा रही हूँ, तो मैं बहुत डर के बहुत सीरियस होके ये गाना मैंने गाया। आपका एक गाना है निबुड़ा,
जो हाँ, सर जी, को जी। बहुत पसंद है। हाँ हाँ he likes निम्बुड़ा। हाँ, सर की सिंप्लिसिटी देख के हम अगर हमसे गेस करने को बोला जाए तो हम बोलेंगे तू ही रे, ऐसा कोई Yeah, गाना। yes, yes. पर सर को भी ये भी नंबर एक अपने आप में शरारती नंबर है, निम्बुड़ा। हाँ हाँ, और निम्बुड़ा में भी निम्बुड़ा जो बोलते हैं ना, हाँ। वो काफी टंग ट्विस्टर है, और इस्माइल जी ने बहुत ही अच्छा कंपोज किया इस गाने को, तो आई रियली एंजॉयड। और हार्ड वर्क बहुत था, क्योंकि रेंज भी है इसमें, बहुत एक रेंज है। फट से नोट हाँ। उसमें ऊपर सेकंड अंतरे में एक फट से ऊपर चला जाता है, Okay. तो रेंज भी था और क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स भी होनी थी ना। तो आप लोग पहले रियाज करते हैं इन वर्ड्स का कि कहीं फंसते हैं, या फिर मतलब कितना टाइम लगा इस गाने को नहीं स्पेशली? नहीं, वो सीख के चले जाते हैं, फिर एक्चुअली सेट्स में 1 घंटा 1.5 घंटे से अंदर हो जाता है गाना। हो जाता है हाँ शूट। हाँ, वहीं पर गा के, अब क्या वो जब निम्बुड़ा मैंने गाया तब तक टेक्नोलॉजी बदल चुका था इन द सेंस, हवा हवाई के टाइम 6 मिनट का गाना एक साथ गाना था, खुदा गवाह, सौदागर, ये सब फिल्म सब एक साथ, लव स्टोरी 1942 भी। पर जब निम्बुड़ा गाए तब ऐसा था कि एक पूरा मुखड़ा या 2 लाइन एक साथ गाकर हम लोग कट ले सकते थे, 2 लाइन के बाद फिर और एक लाइन गा लिया। अच्छा, वो कट ले वर्ड लेते थे, नहीं एक था, साथ पर गाते थे। हम एक 2 लाइन एक साथ गाते थे, फिर वो ओके हुआ तो आगे, तो टेक्नोलॉजी हेल्प्ड अस, इट मेड जॉब अ लिटिल मोर इजियर फॉर अस उस टाइम पर। तो मैम, आप जब ये गाते हैं, एक तरफ आता है तो ही रे, एक तरफ आता है आपका हवा हवाई, तो जस्ट एक फील चेंज होता है इस गाने के साथ। डेफिनेटली, क्योंकि वो एक, कुछ प्रोड्यूसर्स भी ऐसे होते हैं कि डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि बहुत क्लियर एक पिक्चर देते हैं, जैसे संजय लीला बंसाली हो या सुभाष जी हो, ये लोग सब ऐसे डायरेक्टर्स हैं, वो मुझे क्लियरली बोल देते हैं कि ये सीन हम इस सिचुएशन में इसको शूट करने वाले हैं। लव स्टोरी का भी मुझे बताया गया कि ये बड़ी इनोसेंट लड़की है, ये वो उस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन के एटमॉस्फेयर में फर्स्ट टाइम शी इज फॉलन इन लव, तो उसके ये वर्ड्स हैं, उसमें बड़ा नेचर का वर्ड्स था, क्यों नए लग रहे हैं ये धरती गगन, तो एक नेचर है, एक यंग, तो यू नो योर वॉइस हैज टू साउंड वेरी सिंपल, गाने में बहुत ज़्यादा क्लासिकल हरकत नहीं होना चाहिए, और गाना बड़ा एक सिंपल सीधी सादी लड़की कैसे गाए, बस उसको फोकस करके एक इनोसेंस होना चाहिए, ये लगता है। और हवा हवाई था कि शी इज वेरी, मेरे सामने कौन आ सकता है, एरोगेंस है, और कि आई एम समबडी, तो वो गाने में वो था कि सबको एक यू नो कि आई एम सो एंड सो, वो एक मैं आई एम हवा हवाई, यू नो, तो यू हैव टू चेंज। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर एक्टिंग एबिलिटी है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि वो जिस तरह से एटमॉस्फेयर, बख्शी साहब हो, जावेद साहब हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, एक पूरा टीम वर्क होता है, फिर बाय द टाइम यू गो इनटू फेस द माइक, यू हैव अ मच क्लियरर पिक्चर ऑफ द सॉन्ग, मच क्लियरर पिक्चर ऑफ द सॉन्ग। तो अभी मैम आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, मेरा सवाल अब सर से है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट AI will take over the music industry? It can never take over. Whatever you do, it get duplicate. So people who really can understand the emotion, is whatever technology does, it can reproduce a pitch perfectly, harmonics perfectly. But when you play a note, a musician really play a note, there is an emotional depth in it, another dimension to it. And also the same note is approached differently every time. It's not the same. If you play a composition today, the same composition, you will not do it exactly the same. Yes. It depends on your emotion that day, what you feel. Try to bring life to every note. It is like, listening to a flute string orchestra or in a keyboard listening to a string. There is difference. That's right. Normally अभी क्योंकि एक डर है AI सब कैप्चर कर देगा, बहुत सारी नौकरियां, और म्यूजिक इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी हर तरह से चेंज कर, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ये सब तो डर है, पर इन्होंने एक बात कहा है कि आप जैसे मेरी वॉइस सैंपल करके हवा हवाई 14 लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, लेकिन इमोशन, आर्टिस्ट की इमोशन कहाँ से आएगी? आई डोंट थिंक इमोशन उस तरह से आ सकता है AI में। वो डायनामिक्स लेके खेल सकते हैं, पर आपको पता चल जाएगा इट्स नॉट रियल। एक मैम अभी वर्ड है ऑटो ट्यून, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अच्छे खासे लोग उससे अपनी आवाज़ चेंज कर रहे हैं और अपने आप को सिंगर बता रहे हैं, लेकिन जब वो लाइव परफॉर्म करते हैं, लाइव तो नहीं, वो भी पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, वो लिप सिंक करते हैं, तो आपको लगता है कि ये ऑटो ट्यून ने इंडस्ट्री का ज़्यादा नुकसान कर दिया है? ऑटो ट्यून और किसी का नुकसान करे या ना करे, आर्टिस्ट का खुद का नुकसान कर सकता है, क्योंकि एक मेहनत होता है कि हम सुर में गाएं, एकदम लय में गाएं, वो कोशिश जो है, और अच्छे आर्टिस्ट के ऊपर जब थोड़ा सा ऑटो ट्यून यूज होता है वो एनहांस हो सकता है।
पर अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो और आपकी बिल्कुल ऑटो ट्यून से आपका गाना हो सकता है, तो आपकी जिंदगी कितनी लंबी हो सकती है। आप कुछ साल गाओगे, पर बहुत लंबी लंबी रेस की घोड़ी तो आप हो ही नहीं सकते। और फिर अपना ही नुकसान है कि अगर हम जिंदगी में कोशिश नहीं करें कि हम कितनी परफेक्शन की तरफ हम जाएं, वो उसी का नाम जिंदगी है। म्यूजिक हो या अपने खुद की पर्सनालिटी हो, हर चीज में अगर हम ईच डे वी से हम टुडे वी आर गोइंग टू बी अ बेटर पर्सन इन आवर वर्क, better person in our attitude to life, it's good for us. Yes. Otherwise we are the losers. So I don't think artists should depend on autotune. आप अपने आप को मजबूत कीजिए, फिर ऑटोट्यून से अगर गाना एनहांस होता है तो ठीक है। हाँ, वो फिर एक प्लस कर जाएगा आपके लिए। पर अदरवाइज नुकसान आपका ही होगा। नुकसान है उसका। मैम, आपने जब ये गाना गाया है बोले चूड़ियाँ, आपको या जैसे बहुत सारे रेखा जी के लिए, ऐश्वर्या के लिए, आपको ये पता होता है कि स्क्रीन पे एक्ट्रेस कौन आएगी, या उसकी भी आप एक्ट को अपने वॉइस में डालते हैं? ऐसे खास नहीं है, अलग-अलग होता है। मुझे जब भी बताया गया कि शबाना जी के लिए गा रही हूँ या माधुरी दीक्षित जी के लिए गा रही हूँ और श्रीदेवी जी के लिए गा रही हूँ, एक जैसे श्रीदेवी जी का मुझे लगता था कि कोई भी गाना हो उसमें थोड़ी सी चुलबुलीपन, थोड़ा एक आएगा उनके पर्सनालिटी में। और माधुरी जी का एक है कि जैसे आई ऑलवेज थिंक कि एक एक्सप्रेसिवनेस, जो जैसे कथक डांसर का जो एक्सप्रेसिवनेस होता है वो उनके चेहरे में है। और शबाना जी का ऐसा होता है कि एक वो बादल उमड़ ही हो या इन कस्टडी के गाने जो गजल अंदाज का हो, उनका एक पर्सोना, और पता है कि मैं जो भी गाऊंगी उसका लिप सिंक वो बहुत बढ़िया करेंगी। अच्छा। वो शबाना जी का ऐसा है कि वो कोई भी गाना गाती हैं, ऐसा लगता है ये गाना उन्होंने गाया, और मेरी वॉइस इतना उनको सूट करता था, ऐसा लगता था वो मिले सुर मेरा तुम्हारा ही हो, ऐसा लगता है शबाना जी खुद गा रही है। बिल्कुल। तो एक उस जमाने में था। फिर बीच में एक ऐसा दौर आया, बहुत सारे नए एक्ट्रेसेस आ गए, तो मुझे उनका चेहरा, मैं इतनी फिल्में नहीं देखती हूँ, तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या चेहरा हो गया, कि अब नई एक्ट्रेसेस आती थी, तो फिर उनका बस अपने दिमाग से इमेजिन करके ही गाना पड़ता था। अभी आपने एक दूरी भी बनाई है, गाने संगीत से नहीं, गाने से नहीं, एक बॉलीवुड से कहना चाहिए, तो वो दूरी खास आपने सोच के बनाई है या फिर नहीं? दूरी इस वजह से नहीं, जनरेशन चेंज हो गया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे नए सिंगर्स आ गए हैं, हमारी जनरेशन के सिंगर्स थोड़ा बैक हो गए हैं, तो वो 90s के जो गाने हैं वो नहीं है, अभी बहुत अलग ट्रेंड के गाने हैं, और यंगस्टर्स लोग पसंद करते हैं, यंग लोग की आवाज पसंद करते हैं, तो वो दौर चल रहा है हमारा। बीच बीच में कहीं थोड़ा इधर उधर गाया मैंने वैसे, पर इट्स बिकॉज आई थिंक द होल म्यूजिक सिनेरियो हैज चेंज्ड, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। अभी मैं एक रैप म्यूजिक बहुत ज्यादा एंटर कर गया है, गानों के बीच में रैप डाल दिया जा रहा है, कि एक जैसे नॉर्मली चॉइस के ऊपर है, कभी कभी लगता है जैसे गाना डिस्टर्ब हो गया, अचानक से आ जाता है। आपको क्या लगता है कि रैप सॉन्ग का क्या है? देखिए, मुझे गाने में जैसे गाना मुखड़ा होता है, फिर उसके बाद एक छोटा सा ऐसा म्यूजिक आता है जो सीधा उसको अंतरे में लेके जाता है, अंतरे से वापस मुखड़ा के एक गाना खत्म होता है। मैं उस दौर की लड़की हूँ, तो मुझे वो दौर अच्छा लगता है। मुझे गाना शुरू होते थे बहुत रैप आ गया, फिर वो ऑस्ट्रेलिया से राजस्थान चला गया, वो लोगों को अच्छा लगता है। बट पर्सनली मैं मदन मोहन जी, ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स का गाने, बचपन में इन लोगों का गाना मैंने सुना है, तो मुझे एक गाना, पूरा गाना 5 मिनट का एक थॉट पे जाए तो मुझे अच्छा लगता है। Too many changes I don't like। आपके बारे में जो मैंने पढ़ा, तो आप जब लता जी से पहली बार मिली थी, आपने गाना गाया था पहला। जी। आप गाने की लाइंस भूल गई थी। हाँ, क्योंकि वो एक ही स्टूडियो में उस जमाने लाइव होता था। तो लता जी का माइक वहाँ था और मेरा माइक यहाँ, और मैं पहली बार लता जी को, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, मैं उनको ऐसे देख रही कि कैसे गा रही है वो, इतनी मुग्ध हो गई कि मेरे लाइन जब आगे मैं भूल गई। फिर हेमंता से बहुत जेंटली, क्या हुआ, कैनो, बंगाली में बोले कैनो तुम्हें गाई लेना, जैसे बंगला में मुझे बोले कि तो अभी फाइनल टेक हो रहा है, और लता जी 1 या 2 आर्टिस्ट की टेक हैं, उससे ज्यादा शी इज वेरी श्योर व्हेन शी गोज टू द माइक। तो मेरे वजह से फिर वापस कट हो जाए, तो फिर टेक हुआ, ओके हो गया। तो उन्हें गुस्सा नहीं आया? क्योंकि नहीं, वो तो बिल्कुल उनका ऐसा था और मेरा माइक ऐसा, तो वो तो ऐसे चश्मा करके मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराए, उनको समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शी नोज। हाँ, वो फर्स्ट वाली वो चीज होती है, शी वाज वेरी स्वीट। उसके बाद जब स्टूडियो से निकले, वो उनकी मर्सिडीज बेंज जा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी घर। आशा जी के साथ काम करने का कैसा था आपका? आशा जी बहुत चिलबुली है, हाँ, शी इज वेरी जॉली। और पहली बार मैं बहुत नर्वस थी पंचमदा का जब गाना हुआ,
और मुझे ऐसे उन्होंने देखा, उसी मेरे को मतलब उन्होंने वो मुझे असेस करने की कोशिश करती कि किस टाइप की ये लड़की है, गाना छोड़िए किस टाइप के लड़के डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर थोड़ी देर तो उन्होंने बात नहीं किया मुझे, मैं डरी हुई थी। पंचम दा ऐसे बैठे, वो रिहर्सल चल रहा है, वो करिश्मा का गाना था और वो मुझे देख रही है। उसके बाद थोड़ी एक घंटे के बाद उन्होंने मेरे से बात की और वो भी बोली मुझे ब्रेक टू ब्रेक दिया। शी सेड ये जो तुमने कुर्ता पहना है ना बहुत अच्छा है, यही खरीदा है। आई सेड मुझे रियलाइज की क्या जी मुझे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर चुकी है। नहीं, आपने बहुत सारे सीनियर्स लोगों के साथ, आप खुद अभी बहुत सीनियर हम लोगों के लिए है तो काम किया है। अभी जैसे जो जनरेशन आप कभी अभी तो आप कह रहे कम कर दिया, लेकिन अब जो होते हैं जो अभी संगीत है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है, चीज़ें बदल गई हैं, तो उसके साथ काम आसान है या अभी बहुत आर्टिफिशियल सा वर्क हो गया है? काम आसान तो जरूर हो गया है, क्योंकि आपको अगर 6 मिनट का गाना गाना है तो सिर्फ गाना नहीं, आपका सांस भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि वो सांस आप गाने में 6 मिनट के गाने में अपना सांस रखें। तो अभी वो सांस वास का प्रॉब्लम नहीं है, आप आधा लाइन एक लाइन गा सकते हैं। तो मैं आई स्टिल फील कि उस जमाने में जहाँ एक पूरा अंतरा एक साथ रिकॉर्ड होता था, आई प्रिफर दैट। मुझे 2 वर्ड या एक लाइन गाना मुश्किल होता है, और कभी कभी अभी मुझे पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि गाना होता है तो कभी म्यूजिक डायरेक्टर रहते हैं नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है म्यूजिक डायरेक्टर सामने रहकर गाना खुद गा के बताए तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। एक दौर मैम वो भी है, इवन मैं अभी पहले सर से एक सवाल करूंगी, जैसे आपने सीनियर्स के साथ है, सर ने ए.आर. रहमान के साथ काम किया, आपके बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, आपके वीडियोस हैं, टॉकिंग अबाउट ए.आर. रहमान, यस। तो 2 लीजेंड एक साथ जब आते हैं तो आप लोग अपने जो म्यूजिक के साथ बैठते हैं तो कैसी केमिस्ट्री है, फील क्या आता है आपको उनके साथ काम करना आसान है? I just want to know. Is it easy to work with him? With A.R. Rahman. I've known him for a long time. Yeah. Also. So once he mentioned to me that he is fond of this particular song, which I wrote for my father many years back, written in '84. So when he was in Bangalore, visited and he was playing it in my piano there. Then he said, we will do something with that. And later on, subsequently, during COVID, a lot of things, many years passed by, then his mother died. Then all of a sudden, said, we decided we will try to bring, I wanted to bring this, one of his interviews for my father's festival, because I not only did a lot of video project, but I also did some interviews with some personalities. Ilayaraja did some interviews, and Juiji and different. I wanted an interview, said that at the same time, said let us do this also. So we did a lot of things one day. It happened to be his birthday. Okay. So we started recording at 8:30 and finished this song with his family. It was his suggestion. He said, let us involve my family and also you involve your family. My daughter Bindu and my granddaughter, she went there and recorded, and we also did a fun kind of masterclass thing for it. Another video which he released. It was very simple, very simple person. I've known his mother. Yeah. I've known his father. And, They were the same neighborhood same in Madras and Chennai. मद्रासी चेन्नई। आपके में म्यूजिक में बंगाल भी है, आपने टैगोर सीखा? हाँ, टैगोर सीखा। मेरी आंटी जो भट्टाचार्य, उन्होंने आपके को पहचाना था कि आप प्लेबैक सिंगर बन सकती हैं। So she's a Bengali too. I've been half brought up like a Bengali. ओके। तो मैम अभी जैसे कल्चर है उसके बात कर रही हूँ, अभी आप एक रियलिटी शोज़ का दौर बहुत ज़्यादा है, अभी क्या काफ़ी साल हो रहे हैं, क्या रियलिटी शोज़ में एक कई बार हम सुनते हैं कि प्रेशर होता है कि आपको थोड़ा ड्रामा मचाना है, रोना धोना करना है, क्या उन जो बच्चे गा रहे होते हैं क्या उनकी आवाज़ के साथ भी ऑटो ट्यून जैसी चीज़ या कोई अच्छी बजाने की या आपको ज़बरदस्ती तारीफ़ करने का ऐसा कोई प्रेशर आता है? नहीं, ज़बरदस्ती तारीफ करने का होता भी नहीं, और हम जब जाते हैं मे बी बिकॉज हमारी सीनियरिटी की वजह से हमें कोई आकर बोलता नहीं कि आप थोड़ा यहाँ रोइए या आप यहाँ, दे नो दैट हम लोग नहीं मानेंगे इस बात को, तो ऐसे कोई मुझे प्रेशर, मैं तो बैठी रहती हूँ और सुनती हूँ, और कभी कोई बच्चा इतना अच्छा गा लेता कि खुद यू फील इमोशनल कि कैसे ईश्वर की देन है इसके अंदर, यू नो, वो ईश्वर की देन को हम सलाम करते हैं। When we are crying, we are not crying because we are crying for the child, we are saying God, we are seeing your presence in that child. मैं हमेशा ऐसे फील करती हूँ, that's the reason sometimes I get emotional when I see a child 10 years old, 15 years old or 20 years old singing so beautifully.
then I feel I'm seeing some spirituality, I'm seeing some divinity in front of me. तो हमें कोई ऐसे कोई रियलिटी कॉन्टेस्ट में हमें कोई प्रेशर नहीं, अब आज तक तो मेरे साथ कोई ऐसे किस्सा नहीं हुआ कि कोई प्रेशर है। आपका एक मैम एक दौर है जिसमें आप कहते हैं कि आप 2 सिंगर्स के अलग अलग डबिंग, जैसे कि आप डबिंग आर्टिस्ट के तौर पे भी आपकी करियर थी, देन आप ओरिजिनल आपको प्लेटफॉर्म मिला, तो पहले फीमेल ने गा दिया, देन मेल वर्जन ऐड कर दिया गया। कभी कभी होता है कि एक साथ गाते हैं, आपका लव स्टोरी आई थिंक फिल्म में यही था, आप दोनों ने साथ गाया। तो क्योंकि पंचम दा बहुत क्लियर थे, उन्होंने शानू को बोला था कि तुम 3 गाने गा रहे हो, सुपरस्टार हो, लेकिन ये गाना तुम्हें कविता जी के साथ गाना है, तुम अलग गा के चली जाएंगे फिर तुम आके गाए नहीं चलेगा। तो वी sang it together। ओके, वो तो सो डिफरेंट ना, वो पता चलता है कि वो दो गाना एक साथ हो, उस आर्टिस्ट का मूड भी अपने को इफेक्ट होता है ना, तो इट इज अ डिफरेंट थिंग टू सिंग टुगेदर। ये तो पता चला, कभी कभी ऐसा था कि जवाब मेरा होता था, मैं जवाब पहले रिकॉर्ड करके जाऊं, फिर सवाल जो लड़के का जो लाइन से वो बाद में, तो वो ठीक है हो जाता है, लोगों को अच्छा लगा होगा, पर आई फील कि वो बात एक साथ गाने में बनती है ज्यादा। मैम आपके आखिरी सवाल होगा मेरा ये आपसे, और संगीत की दुनिया, आपके पर्सनल लाइफ, एक चीज़ और भी इंस्पायर करती है मैम, जब आपकी शादी हुई देन सर के आपके सेकंड मैरिज थी, उनके बच्चे थे, आपके बच्चे आपने नहीं किए मतलब, लेकिन हाँ उन बच्चों को इस तरह एक्सेप्ट किया है कि कोई कह नहीं सकता। तो बस मेरा वो है कि जब आज के दौर में आपने जिस तरह उस रिश्ते को एक्सेप्ट किया, उन बच्चों ने एक्चुअली आपको एक्सेप्ट किया, सेकेंड डे से वो आपको माँ कहते थे, वो रिश्ता आपके लिए कितना मुश्किल था जब आप उसमें गए? क्योंकि एक सिंगल जाना, क्योंकि आपके मैंने सुना एक इंटरव्यू, आपने बोला मैं बैचलर थी, उन बच्चों ने मुझे माँ बनाया, बस उस पर मैं जानना चाहती हूँ वो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं होता, और ये जर्नी कैसी होती है? एक्चुअली शादी तो करनी नहीं थी मुझे, फिर हो गई, और वो सिर्फ नहीं, मैं ओवरनाइट मदर बन गई। पर बच्चों ने, पहले तो मैं इनका और बच्चों का दाद दूंगी कि ओवरनाइट मुझे एक्सेप्ट किया उन लोगों ने, और अम्मी बहुत छोटा था, हम भी 7 साल का था, दोनों बच्चे, they were all between 7 and 14। somehow मुझे लगता है कि that has been the gift in my life। वो सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे मेरे बच्चों का मुझे मिला, जो मुझे माँ एक्सेप्ट किया, और मैं सारी माँ की रोल मैंने अदा किया, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं, मतलब वो लोग खुद समझदार थे, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। इट वाज जस्ट द कंपेनियनशिप ऑफ हैविंग चिल्ड्रन। तो आई थिंक आई गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इस हिसाब से। सर से भी मेरा एक सवाल होगा, आपके फादर ने आपको वायलिन दिया, जस्ट एक आप विरासत आगे बढ़ा रहे हैं, हेरिटेज, अब आपके बच्चे उसको बढ़ा रहे हैं, एज अ फादर कैसा महसूस होता है? How do you feel? I'm very happy because somebody have to continue my father's legacy, and my father is responsible for changing the whole scenario of the violin. Because before that, violin was an accompanying instrument, mostly with a vocal or other instrumentalist. Always played a second role, second fiddle, you can call it. His dream was to make it a solo instrument and change. So he worked a lot and brought in very lot of new techniques. That opened the door for me to play all over. You want to hear our violin in all the major concert halls, where the Western musicians were playing. So that happened because of his dream. I worked and got it. So subsequently, many of my colleagues' children, they are totally in a different profession. So that legacy which continued suddenly breaks. Yeah. I didn't want that to happen. I wanted at least one of my children to play the violin. My daughter sings very well. She writes all around lyrics, Bindu. Now Ambi plays the violin full time. They're all educated. They all did their PhD in music. I always believe that education is not important. They said you can do both. So they all finished their PhD and they are in different careers. My daughter went to law and finished a PhD in music. She's running SAPA very successfully with my son. The whole both of them are PhD in music, and my third son is a oncologist. He's a head and neck cancer surgeon. Only one, Narayana Subramaniam. He's taken his medical side. He's a very successful, brilliant surgeon. He's at very young age. He's the head of the department and heading as one of the directors. Now I'm hoping after Ambi, my grandchild. We want at least one grandchild to also take up music. So we are working on Bhakti, and she's playing very well. She sings beautifully. So we hope she will continue the legacy of music. उम्मीद करेंगे संगीत की ये दुनिया ऐसे बढ़ेगी आगे। और मैम, सर
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बात थैंक करने के यू, लिए। नाइस टॉकिंग टू यू, Pleasure. थैंक यू। थैंक यू सो मच Pleasure. Thank you. थैंक यू। क्या एक लास्ट रिक्वेस्ट, मैं ही रोकूंगी, इसे खत्म भी करूंगी। मैम, वेदर हमारा दिल्ली का बहुत खराब है, लेकिन फिर भी तू ही रही कि आप 2 लाइन गा देंगी तो बस एक माहौल हमारे लिए कंप्लीट होगा। सबसे मुश्किल गाना, आप तो मैं 100 बार बुलाऊं तो 100 बार आए, तो ब्यूटीफुल ट्रैक, आप प्लीज 2 लाइन अगर उसके गा देंगे, उसके साथ हमारा इंटरव्यू 2 लाइन गाऊं इसके साथ। 100 बार बुलाए तो 100 बार आऊं, एक बार जो दिल दिया, एक आँख रोई तो दूजी बोलो, सोएगी कैसे भला। इन प्यार की राहों में पत्थर है कितने, उन सब को ही पार किया। एक नदी हूँ मैं चाहत भरी, आज मैंने सागर को आए यहाँ। सजना सजना आज आंसू भी मीठे लगे। थैंक यू सो मच। सपने सच होते हैं, ये हमें यकीन है। मैम ने हमारे साथ ही गाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सर।